Okay, everyone. So today we are going to start with our next topic, and that is after the features of business environment, which we have already finished. So the next topic that we are going to do today is secret for the business success of business firm. Okay, everyone. हम सबको पता है कि जो भी बिजनेस सक्सेसफुल है आज के टाइम पर वो सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वो टाइमली स्कैन कर रहा है एनवायरनमेंट को। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को जिसमें आप ऑपरेट करते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, लेट्स हैव अ क्विक recap for the same, that if we take a universe and if we minus, if we deduct our organization from the same, everything else which is existing in this universe is to be taken as an environment, right? हर एक चीज जो एग्जिस्ट करती है वो सब आपका एनवायरनमेंट है और वो सब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगी, राइट? तो अब यहाँ पर समझेंगे हम कि सीक्रेट फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस फर्म वो क्या होता है। कोई भी बिजनेस फर्म अगर लंबे समय तक मार्केट में बना रहना चाहता है, प्रॉफिट्स अर्न करना चाहता है, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, उसको वो स्कैन करे टाइमली, राइट? उसको इवेल्युएट करे, अपने प्लान्स को जो कि उसने ऑलरेडी बनाए हुए हैं उसको मॉडिफाई करे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और जो वो मॉडिफिकेशंस है उसको वो इम्प्लीमेंट करे प्लानिंग में, so that the objective that has already been predetermined can be achieved successfully, right? तो ये हमने बहुत ध्यान से समझना है और ध्यान रखना है कि कोई भी बिजनेस आज के समय में तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कि वो बिजनेस को टाइमली स्कैन नहीं करेगा, एनालाइज नहीं करेगा, इंटरप्रेट नहीं करेगा और उससे अडेप्ट नहीं करेगा। तो मैनेजमेंट का जो मेन फोकस रहता है वो सिर्फ इसी बात पे रहता है that it has to motivate its employees to get used to the adaptation of the new business happenings. That means anything which is which is happening in the environment may be required in our business to incorporate the same change which is taking place externally, right? तो ये ही हमारे बिजनेस को ये इंश्योर करता है कि हम लंबे समय तक अपनी ग्रोथ को, अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन कर सकें। ओके everybody, let's just go through this slide. Successful business or business firms are those who are ready to adapt to their environment. That means any business which is not adapting to the business environment easily, और जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगी एम्प्लॉयज की। देखिए रेजिस्टेंस हमेशा एम्प्लॉयज यानी कि ह्यूमन की ही रहती है, मटेरियल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स रेजिस्ट नहीं कर सकते। तो अगर ह्यूमन रिसोर्स हमारा इजिली अडेप्ट नहीं करता उस चेंजेस को जो कि हो रहे हैं, तो बिजनेस को सस्टेन करने में मुश्किल आती है, राइट? Next point is saying they need to understand and cope up with all those factors and forces which affect their success internally as well as externally. That means we are talking about all those factors which are going to affect the business, which can be either our specific force or general force, right? The next is to remain in business and be successful. Constant understanding of the business environment is a rule rather than an exception. Okay, so constant understanding of the business is a rule. Constant understanding is a rule because आप इसके बिना बिजनेस में सस्टेन कर ही नहीं सकते हैं, मार्केट में सस्टेनेंस ही नहीं है। So it is not an exception, but it is to be taken as a rule which we have to use every time and all the time, right? Okay, next one is organization which fails to adapt to their environment are unlikely to survive in the long run and have to disappear in the long run. Already मैंने आपको बता दिया, I think there are no doubts in this. Okay, there is one more doubt that I have just received और मुझे वो अभी विजिबल नहीं है। बच्चे आपको वो डाउट फिर से लिख कर भेजना होगा क्योंकि मुझे अभी वो डाउट दिख नहीं रहा इस चैट बॉक्स के अंदर। So I think you have deleted it or something. So everybody, please, जिसने भी वो डाउट लिखा था वो बच्चा उस डाउट को फिर से लिख सकता है। I'll resolve that doubt. Okay, next slide in the sequence is environmental scanning. Okay, Aryan Jain, you have raised hand. Bachche, you need to write your doubt in the chat box. Please write it down. Okay,
इन्वायरमेंटल स्कैनिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया और मैं फिर से बता रही हूँ आपको कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब ही होता है, स्कैन करने का मतलब होता है मॉनिटर करना। दैट मीन्स हम ये ध्यान रखेंगे कि किस तरह के चेंजेस बिजनेस में हो रहे हैं और बिजनेस के एनवायरमेंट में हो रहे हैं, और जो भी चेंजेस एनवायरमेंट में हो रहे हैं क्या हम उनको अडेप्ट कर रहे हैं या नहीं, राइट right? तो अगर आप अडेप्ट करते चल रहे हैं, दैट मीन्स जो भी स्कैन के अंदर रिजल्ट्स निकलते हैं, जो भी मॉनिटरिंग के अंदर रिजल्ट्स निकलते हैं, इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दोस चेंजेस, it would be an easy sale for the organization. Okay, everyone, let's go through the slide. Environmental scanning means a process by which business organizations monitor their relevant environment to monitor their relevant environment. That means relevant can be your external environment or internal environment, right? External environment is further divided into two parts, which is general forces and specific forces. ओके और इंटरनल एनवायरनमेंट वही है हमारा जिसको मैंने कल बताया था कि हम उसको बांटते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अंदर, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती है हमारी जो क्रिएट करती है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ओके, इसको हम और डिटेल में आगे देखेंगे। Okay, before moving any further, I think I have seen some hands which students are raising, but I cannot read their doubts, which is not appearing to me on my chat box. Everybody, please write it down so that I can take care of it. Okay. इसके आगे हम पढ़ेंगे टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स अफेक्टिंग द बिजनेस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट होती है वो आती है हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, which is divided into two parts, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, और जो हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो हमको ऑफर करता है अपॉर्चुनिटी, दिस स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सो इसके आगे है बाय मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट थ्रू द एनवायरमेंटल स्कैनिंग व्हिच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, an organization can consider the impact of different event, trends, issues, and expectation of the customer on its goal. So basically what we are trying to understand is that by scanning the environment, we will be trying to understand or look at that what is the changes which is going to which is required in our business, which has to be brought in so that we can take care of all those changes which are taking place, whether in terms of general forces or whether in terms of specific forces. Okay, there is a doubt related to the topic that I'm just discussing. So this topic which I was discussing, that is environmental scanning and the success of the business, this is not written like a particular topic in your NCERT book, but जब आप NCERT में थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें उसके अंदर पैराग्राफ्स में आपको लिखी हुई मिलेंगी. So I would suggest that if you're reading the chapter, please read it thoroughly so that you can find out all these concepts which we are discussing here in the class in your book also, and it is all present. Anything which I'm teaching is not out of your syllabus or not out of your book. Okay, so this next doubt, ma'am, is environmental scanning means monitoring of business changes? हाँ, मैंने मेरे ख्याल से वही पढ़ाया अभी कि environmental scanning का मतलब होता है monitor कीजिए business environment को और जो भी changes वहां हो रहे हैं उसे incorporate कीजिए अपने business के अंदर, right? So that you can achieve your objective. Okay. Now, the next topic which we are going to discuss today is importance of business environment. So, फीचर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. हमको पता है सभी को कि अगर हम बिजनेस को ये चाहते हैं, बिजनेस इज फंक्शनिंग यूजिंग द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. ये सब आप 11th में पढ़ चुके हैं. मैं सिर्फ एक आपको प्रीव्यू दे रही हूँ कि आप जो प्रिंसिपल पे बेस करके अपने बिजनेस को एग्जिस्टेंस में लाते हैं, दैट इज कॉल्ड योर going concern concept, and it says that going concern concept means that any business which we are starting right now, we are expected that it will go on forever. That means we do not start the business with the preconceived notion that we are going to shut it down in a period of 1 year or so, right? So the business will continue, and so because we are planning that
the business will be going in a long term. So we are expecting a vision, we are making a vision for the business in the long term, and so we are planning our objectives accordingly, right? So if we see that business is already working towards achieving that long term goal, and for achieving that long term goal we are making these objectives, which can be made for a period of 6 months or for a period of 1 year. So to understand that how are we going to achieve that objective, this environmental scanning has to be undertaken. That means without undertaking the scanning, the monitoring, the continuous monitoring of the environment, it would not be possible for the business to sustain or to continue its operations without incurring losses in the long run, right? So this is to be taken into consideration, that scanning of business environment is important, and so as the understanding of the same. Okay, next point is the let's go through the slide. To survive and grow in the competitive world, every business enterprise has to systematically analyze and diagnose the environment. A good understanding will enable to react to these changing forces and take advantage of the same. React to these changing forces, हम यहाँ पे जब बात कर रहे थे, मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी अभी कोल्ड ड्रिंक का और पेस्टिसाइड्स का, कि जब कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड्स निकले, ये न्यूज आई, तो इसका फायदा जूसेस बनाने वाली कंपनी को हुआ। तो ये जो चेंज हुआ था एनवायरनमेंट में, वो अपॉर्चुनिटी बनी उन कंपनीज के लिए जो कि जूसेस में डील करती, लाइक वी कैन से रियल और ट्रॉपिकाना, राइट? तो ये आप जो एडवांटेज की बात कर रहे हैं वो इसी बात पे फोकस कर रहा है। ओके, now let's come on the first point. The first point of importance is it enables the firm. Okay, on my screen I'm able to see that there is the time which is left for the session to get over is 10 minutes or less. Everybody please connect, because we have to finish this topic of importance of business environment today, and I'll also be giving you the questions assignment related to this, okay, which I'll be forwarding on your common group also. But today we have to finish this. Okay, everyone. So let's start with the first point, and the first point is it enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. तो पहला एडवांटेज बात कर रहा है अपॉर्चुनिटी की, राइट? सो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसे चेंज हो रहा है और हम मॉनिटर कर रहे हैं उसे कॉन्टिन्यूअसली, सो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट that what is that positive trend which we are able to see or which we are able to gauge. So if we can find out anything positive which is happening in the environment, for of which our organization can take an advantage, so we will be taking the advantage of the same, right? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ इसे, कि आपको याद है और सब लोग जानते हैं कि मारुति उद्योग की गाड़ी आती थी और आती है अभी भी, मगर जब शुरुआत हुई थी तो मारुति उद्योग एक गवर्नमेंट की कंपनी है, और उसकी जो गाड़ी आती थी सबसे पहले स्मॉल सेगमेंट गाड़ी में उसको लॉन्च किया गया था, दैट वाज मारुति 800, राइट? और मारुति 800 के अंदर हमने ये देखा कि दैट वाज द मोस्ट प्रेफर्ड स्मॉल फैमिली कार which was preferred by every family, those who were thinking on the ground of taking the first car, so they were preferring Maruti Udyog Maruti 800, because ये गवर्नमेंट की एक कंपनी थी, पहली चीज, इसलिए उसमें रिलायबिलिटी फैक्टर, उसका ट्रस्ट फैक्टर बहुत हाई रहा। सेकेंडली, उसकी जो प्राइसिंग की गई थी वो दूसरी कार्स जो उसी सेक्शन में एग्जिस्ट करती थी, जो कि बाहर की कंपनी से बिलोंग करती थी, उस सेगमेंट में उसकी प्राइस काफी कम रखी गई थी, जिसकी वजह से लोगों ने उसको प्रेफर किया एज देयर फर्स्ट फैमिली कार ऑन विच दे कैन रिलाई। सेकेंडली, मारुति ने इसको, इस एनवायरमेंट का और भी फायदा उठाया, और वो कैसे, आप ये देखिए कि मारुति वाज वन कंपनी विच प्रोवाइडेड इट्स सर्विसेज ऑन व्हील्स। आपने अगर नाम सुना हो, मारुति ऑन व्हील्स नाम की एक गाड़ी भी चलती है, जिसमें बताया, जिसमें बेसिकली मारुति की कोई भी गाड़ी अगर कहीं भी खराब हो जाती है तो उसके जो सर्विस मैकेनिक्स हैं वो गाड़ी को वहीं लोकेशन पे जाकर ठीक करके आएंगे। तो ये एक फैसिलिटी थी जो कि मारुति ने ऑफर की, जिससे कि उसका ट्रस्ट फैक्टर, उसका गुडविल फैक्टर और बढ़ा और लोगों ने उसको प्रेफर किया।
और भी ज्यादा प्रेफर किया, और फिर मारुति उद्योग बना आगे जाके जॉइंट वेंचर, जो कि बनी मारुति सुजुकी, जिसमें उसने सुजुकी की टेक्नोलॉजी को यूज किया अंडर दैट जॉइंट वेंचर कॉन्सेप्ट, और फर्दर कैपिटलाइज किया अपनी गुडविल को इन द होस्ट कंट्री विच इज इंडिया. सो कैन यू नाउ अंडरस्टैंड कि कैसे इस अपॉर्चुनिटी को एक कंपनी ने अंडरस्टैंड किया, मॉनिटर किया, और उसके बाद उसका एडवांटेज लिया, right? So this is what our first point is referring to. So let me just go through it for you. Opportunities refer to the positive external trend that will help the firm to improve its performance. A company which is more conscious about the change of the business environment can take better advantage instead of losing it to the competitors. So basically, if you can see that there is something positive which is going on in an organization, जैसे in an environment, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो बदल रही हैं और वो फेवर में हो रही हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, तो आप उसका एडवांटेज लेंगे, और एडवांटेज कुछ ऐसे लेना है कि यू विल बी getting the maximum benefit out of it in terms of increased market share, right? Because increased market share is going to actually reflect the increased sales volume, and increased sales volume means more profit, right? And that means growth of the business environment. तो वो तभी होगा जब आप टाइमली अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते रहेंगे, तभी आप ये समझ पाएंगे कि वो जो बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफर कर रहा है वो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और आप उसे कैसे एनकैश कर सकते हैं. So this was the first point of importance. The second point of importance that we are going to start right now. There's 5 minutes left to this meeting, and this meeting will get over. Please connect. मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ. Okay. So next point, I think this point that we are dealing, it is clear to all. I'm not able to see any kind of doubts as of now. So I hope I am explaining the points well and you are able to understand it properly. Okay, everyone. Let's move on to the next point. So the next point says, helps the firm to identify threats and early warning signal. तो पहले पॉइंट में मैंने बात की थी अपॉर्चुनिटीज की, मतलब हम बात कर रहे थे पॉजिटिव ट्रेंड की. अगर इसी को मैं उल्टा कर दूं, मतलब अपॉर्चुनिटीज का उल्टा क्या होता है? थ्रेट, राइट? तो अब इसी पॉइंट में अगर मैं ये बात करूं कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन टाइमली मॉनिटर करेगी इन्वायरमेंट को, स्कैन करेगी इन्वायरमेंट को, उसको इवैल्यूएट करेगी और ये पता लगाएगी कि आपके बिजनेस के लिए किस तरह के थ्रेट्स है, तो थ्रेट्स मींस वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो कि आ रहे हैं आपके सामने या आने वाले हैं आपके सामने, तो आप बेसिकली वही सारे चेंजेस आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी ऑपरेशंस में इंक्लूड करेंगे, जिससे कि इस थ्रेट के आने की वजह से आपका जो परफॉर्मेंस हिंडर होने वाला है वो उस लेवल तक हिंडर ना हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बंद ही हो जाए, राइट? दैट मींस आपके अंदर लॉस सस्टेन करने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब आप अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या थ्रेट है और उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, किस लेवल पे इम्पैक्ट करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, और उस इम्पैक्ट लेवल को आप कम करने की कोशिश करेंगे, राइट? सो दिस इज व्हाट सेकंड पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट. ओके, मैंने आपको अभी, जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल भी देती हूँ थ्रेट का. आप सबको मतलब 11th बी को पढ़ाया था और 11th ए ने भी पढ़ा था इस पॉइंट को. आप सबने एलपीजी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो कि हम इसी चैप्टर में आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो अभी मैं आपको सिर्फ उसका एक प्रीव्यू दे रही हूँ, और वो ये है कि आपने जो अभी ग्लोबलाइजेशन का मैंने नाम लिया, उसके बारे में अगर आप सोचें, तो जब ग्लोबलाइजेशन मतलब जब एलपीजी की पॉलिसी बनाई गई थी और ये गवर्नमेंट ने बनाई थी, तो उस टाइम को आप याद कीजिए कि जब ग्लोबलाइजेशन को इन्वॉल्व किया गया, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमने कहा कि नाउ द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल मार्केट, अ लोकल मार्केट. सो वी कैन से कि अभी हर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही थी, तो इसकी वजह से इंडिया को हम बेस मानेंगे, बिकॉज हम अभी इंडिया को डिस्कस कर रहे हैं. तो एज एन इंडियन सिनेरियो हम बात करते हैं, तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, बहुत सारे एफडीआईज को हमने इनवाइट किया, एफआईआईज को इनवाइट किया. एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हमने इनवाइट किया फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो जब वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपनी फ्रेंचाइजीज लेकर आ रहे हैं या अपने स्पॉन्सर्स लेकर आ रहे हैं इधर कंट्री के अंदर और बिजनेस ओपन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस
को, जो कि हमारा इंडिया के जो बिजनेस हैं, जो डोमेस्टिक बाउंड्रीज में जो एग्जिस्ट कर रहे थे, उनको हुआ लॉस बिकॉज ऑफ द कंपटीशन दैट दे स्टार्टेड टू फेस। अब आप मुझे बताइए कि कोई भी बिजनेस जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहा था, जैसे मैं बात कर लेती हूँ हैंडीक्राफ्ट की ही, तो आप सबको पता है कि हैंडीक्राफ्ट, अगर मैं बात करूं, कारपेट्स का एग्जांपल लेते हैं कि कारपेट्स जो कि एक हैंडलूम में बन रहा है और एक बन रहा है मशीन पे, कौन सा महंगा बिकता है? ऑफ कोर्स द वन विच इज मेड विद हैंड वीविंग, विच इन्वॉल्व्स हैंड वीविंग इन इट। ओके, तो अब जब ग्लोबलाइजेशन हुआ और फॉरेन कंपनीज इंडिया में आई और उन्होंने ऑपरेट करना शुरू किया, तो उन्होंने मशीन मेड कारपेट्स लॉन्च किए और बेहतर कारपेट्स लॉन्च किए जो कि सस्ते भी थे। सो लोगों ने क्या किया? लोगों ने स्विच किया तुरंत फ्रॉम द हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट टू द मशीन मेड प्रोडक्ट्स। तो यही होने की वजह से आप ये देखिए कि जो आपके इंडियन जो आर्टिजन्स थे, जो इंडियन वीवर्स थे, उनको कितना नुकसान हुआ, राइट? सो वी कैन कंसिडर कि ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जब जो आपके एनवायरमेंट में जब ग्लोबलाइजेशन अनाउंस हुआ था, तो अगर आप ये चीज पहले से ही स्कैन करेंगे एनवायरमेंट को और ये जान पाएंगे कि किस तरीके का थ्रेट इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं एनवायरमेंट में और आपको कैसे रेडी रहना चाहिए, सो यू विल ऑलवेज थिंक ऑफ एन ऑल्टरनेट सोल्यूशन, जिससे कि आप अपनी एक अलग पोजीशन बना सके मार्केट में और आप उसका जो इम्पैक्ट है थ्रेट का, उसका जो नेगेटिव साइड है, उसको आप उसका इफेक्ट कम कर सके, राइट? So this is what second point is talking about. Okay, so let me read it for you. Threat refers to the external environment trends that will hinder the firm's performance. Environment awareness helps the organization to identify the threats to its business interest. Business interest means it can be earning profit, it can be serving to the society, it can be anything, right? क्योंकि हम